There is a strange trend that has suddenly emerged, literally out of nowhere, and seems to be spreading like wildfire from social media into real life. I love Muhammad. Where has this trend come from? What is the point? And is this being made a cover for something entirely different? These questions are being asked and should be asked because at first glance, this would seem quite innocent. But over the last few days, this particular trend, these posters, these processions, these slogans have resulted in violence, clashes, and even naked threats being issued. The latest example is today from Uttar Pradesh, where violence was witnessed in Bareilly and in Mau. The flashpoint in Bareilly was a planned protest in support of the I Love Muhammad campaign. People had gathered at the mosque in Bareilly on the call of a local cleric and Ittehad-e-Millat Council chief Maulana Tauqeer Raza. Eventually, Tauqeer Raza didn't turn up, but the mobs went berserk, pelting stones and even opening fire at the cops. That's what the police is alleging. Across Bareilly itself, similar scenes were seen in at least 3 spots. The police then had to resort to lathi charge to disperse the protesters, and several cops were left injured, at least 10 of them with shrapnel injuries. बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें और किसी किस्म का गैर कानूनी और गैर शरई नारा ना लगाया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, क्योंकि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की गई है, तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। किसी किस्म की कोई अगर कोई छेड़छाड़ करता भी है तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा। बहुत एहतियात रखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर जो है उनसे संपर्क किया। और आज सुबह से ही मैं एसएसपी प्रशासन के लोग सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में, और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी, और इसमें पर्याप्त उनके वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पे पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए, उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो है वो भी हम लोग आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। First in Bareilly and then in Mau, people started to march and raise slogans with posters of I Love Muhammad, and when challenged by the police, they clashed with the cops. Remember, this strange experiment had started with Kanpur on the 4th of September. During a Bara Wafat procession there, I Love Muhammad posters were first displayed. They were held aloft, leading to objections from some Hindu organizations. The police managed to control the situation in Kanpur at that time. They filed FIRs against 9 people and 15 unknowns. But since then, this so-called trend has spread across the country. In the last 72 hours alone, stone pelting broke out when similar posters appeared in Davangere in Karnataka. In Gujarat's Gandhinagar, a Hindu man's social media post triggered mob violence. Shops were vandalized, vehicles were damaged. But the intent of all of this still remains extremely mysterious. But one inkling could have been betrayed by a cleric in Maharashtra who issued a brazen threat to Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, declaring that Yogi will be buried alive if he so much as dared to stop anyone who was displaying a poster of I Love Muhammad. सूफी का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने किराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर ऐ टकले तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तू मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे टकले को चैलेंज करता हूँ कि तू मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा।
Now, this so called movement is spreading. But the most revealing part is the political reaction to it, despite the fact that the poster, the trend, has been used as a cover for violence. Not one opposition leader could bring themselves to condemn it. SP Chief Akhilesh Yadav decided instead to condemn the police action today in Bareilly, saying that governments run on goodwill and not with lathi charge. Tejasvi Yadav blamed the BJP. He said that wherever there is violence, you can be sure that the BJP's hand is behind it. And there were yet others who wondered, how can it be wrong to use these three words? I love you. देखिए, हिंसा भड़काने में भाजपा नंबर 1। यूपी से जब खबर आती इसी तरह की खबरें आती, नफरत की, तकरार की, जहर, कभी पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, उद्योग की, धंधे की बात हम क्यों नहीं करते? इससे नुकसान किसको है? यूपी को है, देश को है। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, दोनों बहुत सेंसिटिव है। हमें आपको ये देखना चाहिए इसकी जड़ में कौन है। उस विषय पे हमें कुछ नहीं बोलना। हालांकि धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। हम लोग हिंसा के पक्षधर लोग नहीं हैं और बीजेपी के लोगों को भी हिंसा के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए लोगों को। अगर मैं एक पोस्टर बनाता हूँ आई लव मनोरंजन भारती, कोई केस होगा मुझ? नहीं होगा। नहीं होगा। मैं खुश होगा। और अगर मैं बनाऊं तो क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मेरे दोस्त हैं आप। जब लव इस्तेमाल हो रहा है उसमें प्रॉब्लम क्या है बताइए? अब कि हमको पूछ के लिखना पड़ेगा कि हम लव लिखें या ना लिखें? आर्टिकल 25 है या कचरे के डब्बे में चला गया? आई लव मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को भड़काने का एक अभियान शुरू हुआ है। यह और कुछ नहीं, हिंदुस्तान के सामाजिक वातावरण को प्रदूषित करने और हिंसक एक रुख देने का एक षड्यंत्र है। अब इसको एक हाथ पे हाथ रख करके इस तमाशे को देखा नहीं जा सकता, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और इसके जवाब के तौर पर हमारे संतों ने आई लव महादेव का एक अभियान सुरू किया है। अरे पण ही भूमीच महादेवाची आहे ना, आपल्या प्रत्येकाच्या श्वासातच महादेव आहे। हिंदू राष्ट्रामध्ये आय लव महादेव नाही लिहिणार तर अजून काय लिहिणार? ही भूमीच महादेवाची आहे। एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर महादेव, एम फॉर मुंबई आणि एम फॉर महादेव, सरळ स्पष्ट आहे। म्हणून आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये आय लव महादेवच चालणार। त्याच्यामध्ये मी काय दुसरं काय, मी पाकिस्तान, कराची, इस्लामाबादमध्ये बसून आय लव महादेव नाही लिहिलेलं आहे। मी आमच्या भारतामध्ये हिंदू राष्ट्रामध्ये आमच्या हिंदुत्वादी विचाराच्या महाराष्ट्रामध्येच बसून आय लव महादेव लिहिलेला है। यह गलत है। इस तरीके का लोकतंत्र का देश है। यहाँ धार्मिक प्रदर्शन बिना इजाज़त के करना गलत है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ भी करेगी और इस तरह का कार्रवाई उचित नहीं है। लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और जो गलत है, धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ करें, न कि सड़क पर उत्पात मचाएं। And that brings us to the big questions today on which the buck stops here. Is there a hate story being written surreptitiously in the name of love, or is the government reading too much into what is being called a mere expression of love? Many are even equating it with other slogans like Vande Mataram, where you say that I love my country. Can this be alone singled out and demonized? Joining us on the debate today, Rakesh Tripathi, spokesperson of the BJP. We have Dr. Anurag Bhadoria, spokesperson of Samajwadi Party and leader of the IMIM, Shadab Chauhan, with us. But my first question actually is to you, Tushar Gupta, political analyst. Is too much being read into it? Because there are so many people. You had Omar Abdullah, you had Asaduddin Owaisi. All of them are saying, what is wrong? They are literally saying, I love Muhammad. They are saying, I love my God. Why is a sinister conspiracy being read into this as well? No, absolutely. There is no problem with someone saying that they love their God. Absolutely none. No problem with any person, any community. That's a constitutional right they have. The problem is when that mob starts challenging the state capacity. My problem is not with someone saying, I love Muhammad. That's the constitutional right. My problem is when someone pelts stone on a police on a police officer. That's where my problem begins. If you want to take out a religious procession, there are laws, there are local agencies you have to go to, you have to seek the permission, you have to go through a procedure which is every
community doing right now in India. It's the festive season. There will be a lot of religious processions. There will be a certain procedure that has to be followed in every state, irrespective how to state government works. My problem begins when all these procedures are bypassed. When the laws are bypassed, when religion becomes so big that it's more important than the state procedure, that is something we cannot allow. And what we saw in Bareilly today, that is what I worry about. Do not challenge the state capacity. Do not let it become religion versus the state. डॉक्टर अनुराग भदौरिया, क्या यही एक तरीके से पटकथा लिखी जा रही है कि एक इनोसेंट सा प्रदर्शन होगा, फिर उसमें कौन पत्थर मारेगा, और कहां से ये शुरू हो गया? ये ट्रेंड कब से शुरू हो गया? आपने कभी देखा है उत्तर प्रदेश में? इतने साल हो गए आपको, 40-50 साल हो गए होंगे वहां पे। मेरे को तो याद नहीं है कि कभी ऐसे कोई प्रोसेशन में आई लव मोहम्मद या आई लव किसी और के पोस्टर्स लेके लोग चले हो। तो ये तो चिंता का विषय है ना, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी बदायूं हुआ, कासगंज हुआ, बहराइच हुआ, लखनऊ में भी इस तरह की तोड़फोड़ हुई, अब बरेली में जाके हुई। तो क्या पुलिस प्रशासन क्या करता है, ये जानने की ज़रूरत है कि क्या उनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो गया, क्या उनका जो आईबी डिपार्टमेंट होता है वो कौन लोग हैं? ये ट्रेंड किधर से आया है? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब कानपुर में ये शुरुआत हुई उस समय इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरह के जिन लोगों ने माहौल जब समाज के अंदर बन रहा था तो उनको बैठा के समझा के एक सौहार्द का वातावरण बनाना चाहिए था। एफआईआर किया तो आपने कहा कि ये दमनकारी सरकार है। उन्होंने एफआईआर दूसरी की, उनके एफआईआर की दूसरा मकसद, वही मैं कह रहा हूं कि आप समाज के अंदर में एक अच्छा वातावरण पैदा करना चाहते हैं, पुलिस से मैं पूछ रहा हूं, पुलिस प्रशासन से, या समाज के अंदर में एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिससे कि और समाज के अंदर में नफरत का माहौल जनरेट हो। जो लोग छाप के निकाल रहे हैं वो समाज में कैसा वातावरण? मैं कह रहा हूं पोस्टर चाहे इस तरफ का हो चाहे उस तरफ का हो। नहीं, पर एक तरफ का ही पहले पोस्टर आया। हाँ, मान लो एक तरफ का, मैंने आपकी अचानक क्यों आए, कहां से आए, वही मैं आपसे वही सवाल मैं भी पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में ये पोस्टर आया, पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी जो पोस्टर आया, अगर कोई व्यक्ति आई लव यू मोहम्मद कह रहा है, अगर वो पोस्टर उसको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनकी मंशा जो इनकी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पुलिस को लगता है कि इससे माहौल खराब हो सकता है, जैसा कि बाद में पुलिस ने बताया कि भाई जब हिंदू का पोस्टर को इन्होंने फाड़ा, उस पर डंडे भी बरसाए, तो मेरा सवाल दूसरा ही बनता है कि उस समय पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस प्रशासन ने हमेशा जब घटना हो जाती है, पुलिस को ये पोस्टर छीन लेने चाहिए थे। आप अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी कहते हैं वेरी गुड, नहीं, मैं ये कहता हूं कि पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल पैदा करना जिससे कि एक दूसरे के प्रति कैसे माहौल पैदा होगा? आप इसका जवाब बता रहा हूं। आप पुलिस पोस्टर लगने चाहिए या हटने चाहिए? मेरी बात सुनिए, लगना और हटना तो अलग चीज होती है। नहीं, अलग चीज तो होती है। देखिए, हम अपना त्योहार, मेरी बात सुनिए, हम अपना त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, हम होली धूमधाम से मनाते हैं, हम दिवाली धूमधाम से मनाते हैं, वो अपनी ईद धूमधाम से मनाते हैं, हम उनके, वो हमारे यहाँ आते हैं होली पे हमारी गुजिया खाने के लिए, हम उनकी सिमई खाने जाते हैं। हमें तो नहीं लगता कभी इस तरह का उन्माद पैदा हुआ आज तक हुआ क्या? ईद में जाने में और दिवाली में जाने में आई लव महादेव, आई लव लक्ष्मी, आई लव गणेश तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं। वही मैं कह रहा हूं, तो इस तरह का जब माहौल सोशल मीडिया पे जब ये फैला सोशल मीडिया पे, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी सोशल मीडिया? ओके, राकेश त्रिपाठी बताइए कि रोकना, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपको इंटेलिजेंस होना चाहिए था, अगर इनके इरादे खराब थे आपको इनको रोक ही लेना चाहिए था, इनके पोस्टर आप हटा देते, समाजवादी पार्टी आपको सपोर्ट करती। को भी समझाना चाहिए था कि एक माहौल अच्छा पैदा करें। पोस्टर कोई आई लव मोहम्मद निकाल रहा है, दूसरा समुदाय कहां से आ गया इसमें? मतलब जबरदस्ती आपने दूसरा समुदाय बीच में डाल दिया। अगर कोई आई लव आदमी घर में बैठा हुआ है, दूसरा समुदाय के अगर वो आई लव मोहम्मद निकाल रहा है, किसी को कोई नुकसान नहीं कर रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? हम आई लव अपना, हम अपने गॉड को प्यार करते हैं, हम आई लव महादेव या कुछ भी कर रहे हैं, मैंने किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अगर समाज के अंदर में इस चीज से एक नफरत का माहौल पैदा हो रहा है, तो जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन का होता है कि दोनों समुदाय के लोगों को बैठा के समझाए और बताए कि इससे माहौल खराब हो सकता है, इसलिए आप इसको इस तरीके से कीजिए। ओके, राकेश त्रिपाठी, इंटेलिजेंस आपको होनी चाहिए थी, इनका असली इंटेंट आपको पता होना चाहिए था, समाजवादी पार्टी आपको सपोर्ट करते। देखिए पद्मिता, ये बात पिछले दिनों में लगातार कई बार हम दोहरा चुके हैं अलग अलग चैनलों पर। पिछले एक हफ्ते से हम इन बातों को बहस में ला रहे हैं। 4 तारीख की जो घटना थी जिस पर आई लव मोहम्मद के इस पोस्टर को लेकर के कहा जा रहा है, उसको स्थानीय प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करके सॉल्व कर लिया था। 5 तारीख को बारावफात के जुलूस के माध्यम बाद जिस तरह की वहां छिटपुट घटना करने का प्रयास किया गया, हिंदुओं के मोहल्ले से पोस्टर फाड़े गए,
उसको लेकर के एक एफआईआर की तहरीर दी गई और एफआईआर दर्ज की, कानून ने अपना काम किया। इस बात को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं है। ये कुछ शरारती दिमागों का काम है, जिन शरारती दिमागों को खाद पानी देने का काम न केवल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बल्कि कुछ वामपंथी नेताओं के द्वारा भी पूरे देश भर में एक अभियान बना करके, जानबूझ करके संख्या अपनी दिखाने के लिए, ये प्रदर्शन जानबूझ करके अपनी ताकत दिखाने के लिए किए जा रहे हैं। आई लव मोहम्मद का एक सहारा लेकर के एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की जा रही है और पूरे देश भर में आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों को टेरराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। पर टेरराइज कैसे हो रहा है? अनुराग भदौरिया कह रहे हैं लव में टेरर किधर है? वो तो कह रहे हैं आई लव, वो ये नहीं कह रहे आई हेट यू या आई हेट हिंदूज, वो कह रहे हैं आई लव। लव में टेरर कैसे हो गया राकेश त्रिपाठी? मुझे लगता है पद्मजा, आपकी स्क्रीन पर चल रहे दृश्य देख करके अपने आप दर्शक समझ जाएंगे कि ये लव हो रहा है या हेट हो रही है। अनुराग भदौरिया, टेरराइज और अपनी संख्या दिखाना, शो ऑफ स्ट्रेंथ बेसिकली, ये मसल फ्लेक्सिंग है। एक सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, एक सवाल मेरा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है ये सवाल देश की जनता को सुनना और समझना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? इससे तो नहीं भाग सकते कि उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अब जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हाथ उठाते हैं इबादत, अरे मैं सुनो, मेरी बात सुन लो। कहां से आ जाते हैं ये पत्थर? अल्लाह तो नहीं देते हैं। अच्छा, मेरी बात सुन लो ना। वही तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके पुलिस प्रशासन क्या करता रहता है? पत्थर कोई ऊपर से तो बरसते नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। अनुराग भदौरिया, आप जो सेंट्रल क्वेश्चन है उसको जवाब दे ही नहीं रहे हैं। आप इंटेलिजेंस, पुलिस, बोलने तो दीजिए, आपने बात करी। जब पुलिस ने एक्शन लिया, अखिलेश यादव ने क्या बोला? आज अखिलेश यादव ने बोला कि भाई लाठी से नहीं चलता है, प्यार से चलता है। बिल्कुल सही बात है, लेता है तो पुलिस बोलने दीजिए ना। अरे बोलने तो दीजिए मुझे, मैंने कहा बिल्कुल सही बोला। समाज लाठी से चलेगा, बंदूक से थोड़ी, बंदूक और लाठी से थोड़ी चलेगा। अगर ये चीज आपको पता चलता, पुलिस प्रशासन को पहले ही सैनिटाइज करके लोगों से बात करके उनको लगता है कि माहौल खराब हो सकता है, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं पुलिस सिस्टम फेल हो रहा है ना। इसको मानेंगे क्यों नहीं आप कि पुलिस सिस्टम फेल हो रहा है? आपको पता ही नहीं चलता है आपके समाज में क्या हो रहा है? आपको नहीं हो रहा है ना। अगर फेल हो रहा होता तो पहले कानपुर में और अब बरेली में लोगों पे एफआईआर नहीं होता। सरकार किसकी है? सरकार किसकी? मैं सवाल, सरकार बीजेपी की है। आप सुनिए, जब इसीलिए एफआईआर किया है ना। तो इसलिए मैं वही पूछ रहा हूं, जब समाजवादी पार्टी सरकार में कोई इस तरह की घटना होती थी तब आप इस्तीफा मांगते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार इस्तीफा दे क्योंकि वहां पे इस तरह की घटना हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है तो आप इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मांगते, आप सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं कि विपक्ष बताइए वहां घटना कैसे हो गई। अनुराग भदौरिया, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस राइट्स इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। सरकार होगी, अगर ऐसी घटना होगी तो इस्तीफा मुझसे मांगेंगे, लेकिन यहाँ पे योगी जी से इस्तीफा नहीं मांगेंगे क्योंकि लगातार घटना हो रही है। भदौरिया, काम डाउन। सबसे जो बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है, आपकी सरकार छोड़िए, आपके एक मंत्री तक ने इस्तीफा नहीं दिया। जब मुजफ्फरनगर के दंगे लेकिन आपने मांगा, नाक के नीचे हुए थे और उसके बाद आपने सफाई का उत्सव भी किया इस्तीफा। लगातार इनके सरकार में दंगे हो रहे हैं, लगातार माहौल खराब होता है। इस्तीफा क्या, वो 2 दिन की छुट्टी भी नहीं ली, वो सबके सब अपने कार्यालय में बने रहे थे। एनीवे, बोला करो, एक दंगा बताओ उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ। लगातार ये माहौल, इस तरह का जो माहौल खराब हो रहा है, लगातार इस तरह का जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं आप हमेशा। आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माहौल क्यों खराब हो रहा है? उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस तरह का माहौल होता है। बिहार में भारतीय जनता सांप्रदायिक दंगों का प्रदेश बना के उत्तर प्रदेश को आपने, राजस्थान में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहीं पे ऐसे माहौल क्यों पैदा होता है? आप नफरत की राजनीति को जन्म देना चाहते हो, आप विकास की राजनीति करना चाहते हो, आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जिससे विकास की बात नहीं हो पाए, समाज के अंदर में जो असली मुद्दे वो गौड़ हो जाए, इसलिए आप ऐसे धर्म की राजनीति को जन्म दे रहे हो। ये खतरनाक और समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। डॉक्टर भदौरिया, एक सेकंड, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको हर जगह नफरत दिखाई दे रही है। यू कैन सी हेट एवरीवेयर एक्सेप्ट इन द एक्चुअल पीपल हु आर पेल्टिंग स्टोन्स। एंड वी मस्ट रिमेंबर that आज बरेली पुलिस ने जो कहा है वो बहुत खतरनाक है। They have said that people who assembled with posters of I Love Muhammad came with illegal weapons. They have opened fire at the police and 10 policemen are injured. They have got pellet or shrapnel injuries. And that's why I want to ask you, Shadab Chauhan, what do you make of the allegation that this is a show of strength? This is a deliberate attempt to try and tell the other community that we are powerful here. Don't mess with us. Shadab Chauhan. Padamja, we never endorse any kind of violence. We believe in rule of law, but it doesn't mean that I didn't speak I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I continue to speak I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam till my last breath, because Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the most important thing in my life. To respect my prophet, to love my prophet is more important to love my parents, to love everything.
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the most important person in my life. But it doesn't mean I violate any kind of law. But we can't tolerate that atrocities of UP police. If UP police book any innocent people, then we will fight constitutionally against by them. all means, और sir, एक you चीज- should love whoever you want, but you should love in the places that they are supposed to be loved. You loved in your house, you love them in your place of worship. आप उनको अपने घर में लव कीजिए, आप उनको अपनी दरगाह में, अपने मस्जिद में लव कीजिए, सड़क पे ये कब से? एंड दिस इज वेरी स्ट्रेंज. मुझे अगेन मैं ये फिर से कह रही हूं कि गांधीनगर में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में कब से ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स निकालने का चलन हो गया? शादाब चौहान, ये क्या प्रथा है? आपने कभी ईद में देखा? आपने कभी मुहर्रम में देखा? कभी तो मेरे को याद नहीं है. ये कौन सी नई प्रथा है? नहीं, पदमजा, इट्स नॉट अ रिचुअल. ये कोई रिचुअल नहीं है. जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर एक मुसलमान हमेशा मोहब्बत करता आया है और हमेशा करता रहेगा. तमाम दुनिया में तमाम चीजों से बढ़कर करता रहेगा. और उसकी सजा अगर कुछ किसी को देना है अरे तो हजारों साल से जब आप बिना पोस्टर के कर ही रहे थे मोहब्बत, तो अचानक से ये पोस्टर लाने की क्या जरूरत पड़ गई? पदमजा, अलाउ मी टू कंप्लीट, देन यू कैन रिवर्ट. कानपुर में जो घटना घटती है उसके जवाब में अगर प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे बरेली के लोग पीसफुल तरीके से, पुलिस उनको क्यों रोकना चाह रही थी? अगर वो जाकर के वहां करते, अगर आपने वहां पर लगाया है कि आप नहीं जा सकते, आप उनको केस बुक कर सकते थे उन पर, अगर वो मेमोरेंडम देना चाह रहे थे. दूसरी चीज, अगर बरेली पुलिस मासूमों को, बेगुनाह निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करेगी तो हम पूरे प्रदेश में, हमारे नेता शौकत अली साहब ने कहा है कि हम पूरे प्रदेश में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. दूसरी चीज ये है कि यही तो पॉइंट है शादाब चौहान. पहले यू ओपन फायर, देन व्हेन एक्शन इज टेकन यू लाइक हम पूरे प्रदेश में करेंगे. ऐसे ही तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना कि पहले आप वायलेंस कीजिए, कोई एक्शन हो तो आप कहें हम और बड़ा एजिटेशन करेंगे. क्यों? हम वायलेंस का फेवर नहीं कर रहे हैं. और क्या घटना घटी एक जांच का विषय है कि कैसे वो जो मॉब निकली वो कौन जा रही थी. ओके, 10 सेकंड. अनुराग भदौरिया फिर राकेश त्रिपाठी. जांच का विषय आप कैसा डिसाइड कर सकते हैं? आई लव मोहम्मद लिखना अपराध नहीं हो गया. और मुझे दुनिया की 10 सेकंड अनुराग भदौरिया, देन तुषार गुप्ता. 10 सेकंड अनुराग भदौरिया. सीधा सा सवाल है, मेरा सीधा सा सवाल है और मैं उससे पूछना भी चाहता हूं. देश के अंदर में चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर पुलिस को या प्रशासन को लगता है कि समाज के अंदर में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, उससे आप क्यों नहीं बुक करते? उसे क्यों नहीं आप जेल में डालते? उस पर कार्रवाई आप क्यों नहीं करते? आप उस पर राजनीति क्यों कर रहे हो? भाई ये इतना सेंसिटिव मामला है जिसपे सुबह से लेकर शाम तक टीवी से लेके और बीजेपी के जो सपोर्टर लोग राजनीति कर रहे हैं. मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि न्याय होना चाहिए. पूछा गया था अखिलेश यादव से कि आज बरेली के अंदर, एक सेकंड, उनसे सिंपल सवाल पूछा गया, बरेली के अंदर लोगों ने फायरिंग की है, उन्होंने पत्थरबाजी की है, उनके खिलाफ एक्शन सही अब है. सवाल ये, उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल, उन्होंने क्या बोला? गलती पुलिस की है, उन्हें लाठी नहीं चलानी. देखो, मैं कह रहा हूं, आप ये बात तो आप कह रहे हो ना, अभी अब जांच का विषय है, सब सामने आ जाएगा. फुटेज, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए. अरे बात पता चलने दीजिए ना, क्योंकि जांच का विषय समाज के अंदर में, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर पुलिस पे हमला हो रहा है, पुलिस पे हमला किया गया, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए. अरे बात तो होने दीजिए मेरे, मैं सुन लीजिए मेरी बात. अरे बात ही नहीं होने देंगे आप तो. ऐसा पकड़ के बैठिए जैसे लग रहा है कि आपको बीजेपी की तरफ से भेजा गया है, समाजवादी को बोलने नहीं देना है और प्रूफ करके कर देना है कि नहीं समाजवादी पार्टी इसमें शामिल है. अरे भाई मेरी बात तो जाने दीजिए. आप लोग तो गजब करते हो भाई कि विपक्ष में हमलेवर रहते हो. मुझे बात करने दीजिए. मैंने कहा कि किसी भी दल, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर पुलिस पे हमला करेगा, समाज में कानून तोड़ने की काम करेगा, कानून अपने हाथ में लेगा, हिंसा, अगर हिंसा फैलाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. मैं तो कह रहा हूं डंके की चोट पे, चाहे किसी जात धर्म का हो. तो जब कार्रवाई हुई तो अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि लाठी से फैसला नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? उस पर राजनीति कर रही है, समाजवादी को दोषी ठहरा रही है, विपक्ष को दोषी ठहरा रही है. अरे सरकार आपकी दोषी आप है. ओके, तुषार गुप्ता, कैसे ये माहौल खराब तुषार गुप्ता, I want to read out an editorial that was printed in the Indian Express today, and its opening lines, it's written by a former वाइस चांसलर. इट सेज, मुझे सुकून मिलता है मेरी अजान से, ये देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से. द पॉइंट बीइंग मेड ओवर देयर इज दैट आई लव मोहम्मद इज एक्चुअली एन एक्सप्रेशन ऑफ लव. इट शुड नॉट बी demonized in this current political atmosphere. Everything gets demonized because Muslims are saying it. No, one thing is this looks like a litmus test to test the state capacity. I'll be very upfront about it. What we are seeing on your screen right now, this doesn't look normal by any stretch of imagination. This looks like a litmus test, something preceding a bigger event just to check the state capacity. And this is where it becomes very, very important for the state authorities to crack down on all these arsonists.
Number two, you look at the loop that has been created in the last 20 minutes by the Samajwadi and the AMM spokesperson. ओवैसी साहब के स्पोक्सपर्सन कहते हैं अगर कुछ होगा, अगर कोई इनोसेंट पे कार्रवाई होगी तो हम उसके साथ खड़े हैं। समाजवादी वाले कहते हैं अगर आपको पता था ऐसा होने वाला तो आपने कुछ किया नहीं। तो अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए सरकार कुछ करे तब सरकार बुरी है, कुछ होने के बाद सरकार कुछ करे तब भी सरकार बुरी है। पॉलिटिक्स ऑपोजिशन कर रहा है, बीजेपी नहीं। द ऑपोजिशन वांट्स टू क्रिएट दिस हिस्टीरिया दैट ओ लुक कम्युनिटी इज नॉट बीइंग अलाउड टू प्रोपेगेट इट्स लव फॉर इट्स गॉड। दैट इज द काइंड ऑफ हिस्टीरिया दे वांट। अगर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में खराब होती है तो जिम्मेदारी सरकार की है कि विपक्ष की है? विपक्ष तो आपके साथ खड़ा कंधे से कंधे मिलाता है कि समाज के अंदर में शांति रहनी चाहिए, लेकिन आपकी सरकार, आपका सिस्टम फेल क्यों होता है? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल क्यों होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपका क्या करता रहता है? एक बार थोड़ी हुआ, बदायूं में इस तरह की घटना हुई तब आप दूसरों को दोषी ठहरा रहे थे, बहराइच में घटना हुई तब दोषी ठहरा रहे थे, कासगंज में घटना हुई तब दोषी ठहरा रहे थे, बरेली में घटना होगी तब दोषी ठहरा रहे हो, कानपुर में घटना हुई आप उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। अगर आप सारी घटनाओं को तरीके से मैनेज कर लो, यही तो एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी होती है कि कोई घटना ना हो पाए, घटना मैनेज हो और आदमी शांति रहे। इसके मतलब आपका कानून व्यवस्था फेल हो रही है, आप मानते क्यों नहीं हो? ओके, राकेश त्रिपाठी, सिंपल सा सवाल है। आप जब आपने देख लिया है कि इस ट्रेंड से एक तरीके से हिस्टीरिया पैदा किया जा रहा है, आप इस पर रोक लगा दीजिए ना। ऐसे कोई प्रोसेशन नहीं निकलेंगे उत्तर प्रदेश में। अगर कोई मौलाना भीड़ में बैठ करके योगी आदित्यनाथ को कह रहा है कि मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, सबसे पहले तो उसको जेल में डालिए। इसको सिर्फ राजनीति मत कीजिए, आप जेल में डालिए उन सबको। नहीं, बिल्कुल जेल में डालेंगे। पद्मजा, देश की भी अभी यही इच्छा है, ऐसे लोग निश्चित तौर पर जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। कानपुर के मामले में भी यही शुरू किया था हमने। कानपुर में भी जिन्होंने कानून को तोड़ा था, उनको जो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा, उनको जेल भेजा। अब इसके बाद एक जानबूझ करके शक्ति प्रदर्शन की श्रृंखला शुरू की है। शक्ति प्रदर्शन की श्रृंखला करने वालों को भी आज बरेली में आज गिरफ्तारियां प्रारंभ हो गई। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। मैं जानता हूं कि ये मुफीद मौका बनता है अनुराग भदौरिया के लिए, शौकत अली के लिए, वो ऐसी बंधुओं के लिए कि ऐसे मसलों पर वो जम करके राजनीति करें, लेकिन शर्म आनी चाहिए। आप देखिए ना, ये बच्चे जिनकी उम्र मुझे लगता है 15-18 वर्ष के होंगे, आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं, ये काला कपड़ा पहने हुए, सफेद टोपी लगाए हुए जालीदार, ये बच्चे 18 वर्ष 16 वर्ष के, इनके खिलाफ आज मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। इस दर्द को समझो अनुराग भदौरिया। अरे सर, आपको समझना है, सरकार आपकी है कि बच्चे क्यों हैं, कौन बच्चे हैं, कैसे हुआ, कौन लोग हैं, कैसे होने दिया गया, कैसे आ गए वो, कैसे इस तरह की घटना पैदा हो गई, ये जिम्मेदारी आपकी है प्रभु। आप सत्ता में हैं और आप जिम्मेदारी विपक्ष पे डालते हैं। अनुराग भदौरिया, फेयर पॉइंट। आप कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी सरकार की है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इफ दीज पीपल आर राउंडेड अप एंड पुट इन जेल, आई होप एट दैट पॉइंट नोबडी फ्रॉम योर पार्टी इज गोइंग टू जंप इन एंड से लड़के हैं, गलती हो जाती है। At that time, nobody should be standing in the defense of these rioters and say innocent people have been rounded up and we are going to stand with them and intensify this protest even further. On that note, thanks very much all gentlemen for having joined me on the Buck Stops here.